Hello students, this is our 14th chapter, Ecosystem and Energy Flow. So, in the previous part of the video, we were studying about the four main processes, that is the basic processes. Let's go to that slide. We were studying about decomposition. Then we studied about some important steps in the process of decomposition. वो थे fragmentation, leaching, catabolism, humification and mineralization. And then we understood what is fragmentation. Then we did with leaching and catabolism. We did with decomposition cycle. Now we will see what is humidification and mineralization. So humidification and mineralization occur during decomposition in the soil. जब सॉइल में डिकम्पोजिशन होता है तब ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन होती है. अब ये दोनों है क्या? ह्यूमिफिकेशन इज़ रिलेटेड टू ह्यूमस. ह्यूमस क्या है? वेस्ट मटेरियल हो गया ह्यूमस. और मिनरलाइजेशन क्या है? वो ह्यूमस के बाद वाला प्रोसेस है मिनरलाइजेशन. तो लेट्स स्टडी स्टूडेंट्स. Humification and mineralization occur during decomposition in the soil. Soil में जब decomposition होता है तब humification और mineralization होता है. Humification leads to accumulation of partially decomposed, a dark colored, amorphous, colloidal organic substance called humus. What is humus करके क्वेश्चन आएगा. तो humus क्या है? It leads to accumulation, जमा होना, of partially decomposed, ऐसा substance, ऐसे material जो partially decomposed है, dark colored, amorphous, कोलॉइडल ऑर्गेनिक सब्सटेंस. ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं ह्यूमस. दैट इज़ रेसिस्टेंस टू माइक्रोबियल एक्शन एंड अंडरगोज डिकम्पोजिशन. इट इज़ एन रेजिस्टेंस. ये रेजिस्ट करता है हमारे माइक्रोबियल एक्शंस को एंड इट अंडरगोज डिकम्पोजिशन एट एन एक्सट्रीमली लो रेट. एक्सट्रीमली लो रेट पे डिकम्पोजिशन हो रहा है. ह्यूमस फॉर्मेशन चेंजेस सॉइल टेक्सचर एंड इंक्रीजेस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल. ह्यूमस का जो फॉर्मेशन है इट चेंजेस सॉइल टेक्सचर. सॉइल के टेक्सचर को चेंज करता है एंड इंक्रीजेस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. जो वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी है उसे भी इंक्रीज़ करता है. तो अब सॉइल क्या करेगा? ज़्यादा पानी होल्ड करेगा. ह्यूमस फॉर्मेशन चेंजेस सॉइल टेक्सचर एंड इंक्रीजेस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल. डन विद दिस. बीइंग कोलॉइडल इन नेचर. नेचर में ये चीज़ कोलॉइडल है. Being colloidal in nature, humus serve as a reservoir of nutrient. ये ह्यूमस के अंदर बहुत सारे टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं. इट सर्व एज अ रिजर्वायर. रिजर्वायर मीन्स जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं. तो रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट. बीइंग colloidal in nature, humus serve as a reservoir of nutrient. The humus is further degraded by some microbes. अब ये humus के आगे क्या हो रहा है? Let's see and concentrate. This humus is further degraded by some microbes and release of inorganic nutrients
occur by the process known as mineralization. The humus is further degrade हो रहा है by some microbes and then release of inorganic nutrient occur by the process. And that inorganic material जो कि अब बना है उसे ही हम लोग मिनरलाइजेशन बोलते हैं और ये न्यूट्रिएंट है. इम्पॉर्टेंट पॉइंट. मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. Decomposition as a process requires oxygen. Decomposition को ऑक्सीजन चाहिए. Temperature and soil moisture are the most important factor that regulate decomposition indirectly to help soil microbes. Decomposition as a process. अगर एक प्रोसेस देखेंगे जो कि हमारा डिकम्पोजिशन है. डिकम्पोजिशन एज अ प्रोसेस रिक्वायर्स ऑक्सीजन. उसे ऑक्सीजन चाहिए. टेम्परेचर एंड सॉइल मॉइस्चर. टेम्परेचर और सॉइल मॉइस्चर ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो रेगुलेट कर रही है डिकम्पोजिशन को इनडायरेक्टली. Not directly, they are regulating our decomposition in indirectly, and it also helps soil microbes. I'll repeat this point. Decomposition as a process requires oxygen. Temperature and soil moisture are the two most important factors that regulate decomposition indirectly to help soil microbes. Warm and moist environment favors decomposition. जो warm और moist environment होता है. Warm means थोड़ा गर्मी और ठंडी भी. नो वार्म इन्वायरमेंट. सनलाइट भी होगी और थोड़ा ज़्यादा सनलाइट एक्सीड नहीं करेगा, लिमिट में होगा. तो जो वार्म इन्वायरमेंट होता है और मॉइस्ट इन्वायरमेंट हो गया, ये दोनों भी फेवर करते हैं डिकम्पोजिशन को. वार्म एंड मॉइस्ट इन्वायरमेंट, बोथ द इन्वायरमेंट फेवर्स डिकम्पोजिशन. वेरियस लो टेम्परेचर and anaerobic condition inhibit decomposition. अगर बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर है या फिर एनारोबिक कंडीशन है तो उस टाइम पे डिकम्पोजिशन इनहिबिट होगा. इनहिबिट मीन्स प्रोहिबिट होगा, नहीं होगा. क्लियर विद दिस. तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स कौन से हमारे? टेम्परेचर एंड सॉइल मॉइस्चर आर द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर that regulate decomposition indirectly to help soil microbes. Clear with this? Moving to the next slide. Can you recall what is a food chain and what are trophic levels in a food chain? फूड चेन क्या होता है और ट्रॉफिक लेवल क्या होता है? हम लोग ने ये सारी चीज़ें 11th स्टैंडर्ड में पढ़ी है. So let's see what is food chain and what is trophic levels in the food chain. This is food chain. A food chain shows the transfer of energy within an ecosystem. एनर्जी किस तरीके से ट्रांसफ़र हो रही है इकोसिस्टम के अंदर ही, इसी को हम लोग फूड चेन बोलते हैं. Energy is transferred between organism when one organism eats another. इस तरीके से जो हमारी एनर्जी है वो ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बिटवीन ऑर्गेनिज्म when one organism eats another organism
A food chain is a simple linear a series of steps, while a food web is more complex. यह है ट्रॉफिक लेवल्स। सबसे पहले आते हैं प्रोड्यूसर्स, प्लांट्स। सोलार एनर्जी तो मेन इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारा टेम्परेचर। फिर प्राइमरी कंज्यूमर या फिर हर्बीवायरस आते हैं। ये लोग प्राइमरी कंज्यूमर्स आर टोटली डिपेंडेड ऑन आर प्रोड्यूसर्स। फिर उसके बाद आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। अब ये सेकेंडरी कंज्यूमर क्या करते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर पे डिपेंडेंट है। फिर आते हैं हमारे टर्शरी कंज्यूमर या फिर लार्ज कार्निवायरस। अब ये टर्शरी कंज्यूमर अपने फूड के लिए सेकेंडरी कंज्यूमर पे डिपेंडेंट है। तो इस तरीके से एनर्जी फ्लो होती है। प्रोड्यूसर्स के ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर डिपेंडेंट है, जो कि हर्बीवायरस है। प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर सेकेंडरी कंज्यूमर डिपेंडेंट है, जो कि स्मॉल कार्निवरस है। अब सेकेंडरी कंज्यूमर के ऊपर टर्शरी कंज्यूमर डिपेंडेंट है, जो कि लार्ज कार्निवरस है। ये है ट्रॉफिक लेवल ऑफ एनर्जी फ्लो, और वी कैन से एन इकोसिस्टम। जो रेड है, रेड डिनोट करता है एनर्जी फ्लोइंग थ्रू द सिस्टम, और ब्लू लाइन डिनोट करता है हीट एनर्जी लॉस्ट फ्रॉम द सिस्टम। क्लियर विद दिस? गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ वी विल स्टार्ट अ न्यू कॉन्सेप्ट, जो है एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो क्या है? Sun is the only source of energy for all ecosystem on the earth except for the deep sea ecosystem. Sun एक अकेला source of energy है हमारे पूरे ecosystem के लिए। On the earth except for the deep sea ecosystem. One of the total incident solar radiation, less than 50% of it is photosynthetically active radiation, जिसे पार बोलते हैं हम लोग। प्लांट्स एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जो कि ऑटोट्रॉप्स है, फिक्स एनर्जी टू प्रिपेयर फूड। प्लांट एंड फोटोसिंथेसिस बैक्टीरिया, व्हाट दे डू इज़ दे फिक्स एनर्जी। एनर्जी ये लोग फिक्स करते हैं टू प्रिपेयर फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। प्लांट कैप्चर ओनली 2 to 10% ऑफ द पार PAR, that is photosynthetic active radiation, and this small amount of energy sustain the entire living world. Clear with this? Therefore, it is very important to know how the solar energy captured by plant flow through different organisms of an ecosystem. कैसे ये सोलर एनर्जी कैप्चर होती है बाय प्लांट फ्लो थ्रू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ऑफ एन इकोसिस्टम। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली all organisms are dependent for their food on producers. जब तक प्रोड्यूसर फूड को प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो सारे इंडिविजुअल अपने खाने के लिए, अपनी एनर्जी के लिए ऑब्वियसली यही प्लांट्स पे ही बैठेंगे। That's what it is saying. I'll repeat. Therefore, it is very important to know how the solar energy captured by plant flow through different organisms of an ecosystem, directly or indirectly. All organisms are dependent for their food on producers. Hence, there is unidirectional flow of energy from sun to producer. सन से प्रोड्यूसर तक के एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी है। एंड देन टू कंज्यूम द डायरेक्शन कॉज कैन
not be reserved. Energy can be used only once in the ecosystem. So students, here we end this video. In the next part of the video we will continue with this topic only. Till then, thank you.